الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج اگست کی 15 تاریخ ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے بسنے والے سبھی دیش واسیوں کی آزادی کا دن ہے۔ انیس سو 47 میں یہ ہمیں آزادی ملی۔ جب سے لے کر آج تک ہم ہر سال ہر علاقے، ہر محلے اور چوک میں، اسکول اور کالجوں میں اور پورے ملک میں آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ اس دن ہمیں غلامی سے، انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کے سبھی بھارتیوں کو آزادی ملی۔ اور آزادی یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور انسان کیا، کوئی بھی جاندار چیز، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی، اگر آپ اس کو پنجرے میں رکھتے ہیں اور جیسے ہی اس کے پنجرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو فوراً نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں بھی آزادی ہے، وہ پنجرے میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو انسان، اس کے تو اللہ نے فطرت میں آزادی دے رکھی ہے، اور انسان کبھی بھی غلامی کی زندگی نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں انسان تو بہت پہلے سے آئے، لیکن جب ذات آئی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو آپ نے انسانوں کو بتایا آپ کے اس دنیا میں آنے تک انسانوں کے اندر کئی طرح کی کیٹیگریاں تھیں، امیر غریب آزاد غلام، ایسے دور میں انسان زندگی جی رہا تھا۔ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انسان کو مال سمجھا جاتا تھا، انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا، چنانچہ غلام اور بامیہ بکتے تھے اور خریدتے تھے لوگ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انسانوں کو سمجھائی کہ یہ غلامی، یہ زندگی، یہ انسان کی فطرت کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت، بڑا ثواب رکھا ان لوگوں کے لیے جو غلاموں کو خرید کر آزاد کرے۔ چنانچہ صحابہ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا۔ یہ انسان کو آزادی نہیں لائی، کیوں؟ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، انسان کبھی غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 800 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور آخری دور سب سے وہ مغل بادشاہوں کا گزرا ہے۔ انہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور حکومت میں ایسا عادلانہ نظام قائم کیا، اور اپنے اس ملک پر اتنی محنت انہوں نے کیا کہ اس ملک کو انہوں نے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں تھا۔ ہمارے ملک کی حیثیت دنیا میں بہت اونچا درجے کی دی جاتی تھی، اور ترقی یافتہ اتنا یہ ملک تھا، ہر اعتبار سے، کاشتکاری اور کھیتی کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا کے اندر اس ملک کو اچھی طرح جانا اور مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے ہر طرف سے لوگ ہمارے اس ملک میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، بزنس کے لیے آیا کرتے تھے، اور اسی بزنس کرنے والوں نے تاجر کے بھیس میں یہ انگریز بھی انگلینڈ سے آ گئے۔ انگریز بھی یہاں آیا، اور جب آ کے اس نے ہمارے ملک کو دیکھا اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھا کہ یہاں پہ لوگ کتنا مل جل کر رہتے ہیں، کئی طرح کے ذات کے لوگ ہیں، لیکن ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہ بہت محبت کے ساتھ بالکل ہندوستان کو ایک گلستان بنا رکھا ہے۔ گلستان اس پھول کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر، اس گلدستان کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کے پھول۔ چنانچہ ہندوستان اس زمانے میں اس طرح ہی سے تھا کہ لوگ آ کر دیکھتے اور حیرت میں پڑ جاتے، اور بلکہ دنیا کے کچھ لوگوں کو تو یہ حیرانگی میں بات ڈالتی تھی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، الگ ان کی ذاتیں ہیں، الگ ان کے خیالات ہیں، مذہب الگ ہے، لیکن کتنا مل جل کر ایک ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کالے گورے میں فرق انہوں نے کیا، لینگویج میں فرق کیا، انہوں نے ذاتیوں میں فرق کیا، انہوں نے اپنے ہی ملک کے گوروں نے کالوں کو مارا، کالوں نے نفرت میں گوروں کو مارا، اور اس طریقے سے ایک ملک میں کالے گورے نہیں رہ پائے۔ اور ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ تھی کہ مختلف قسم کے ذہن میں رکھنے والے، الگ الگ خیالات، الگ الگ مذہب کو ماننے والے، سب کے سب بالکل محبت کے ساتھ رہ رہے۔
चुनांचे हमारे मुल्क में अंग्रेज आया, इंग्लैंड से आया, और आकर के जब उसने हमारे मुल्क को देखा और ये देखा कि यहाँ पे तो इतने हीरे जवाहरात हैं, जगह जगह मोतियां हैं, जगह जगह इनके पास कीमती ज्वेलरियां हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, इनके पास अनाज की कमी नहीं है। और जिस जमाने में अंग्रेज आया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कपड़े की हमारे मुल्क में थी। सारी दुनिया में कपड़ा हमारे यहाँ का जाया है। हर एतबार से ये मुल्क बड़ा मजबूत था। और ये मुगल का साम्राज्य का जब आखिरी दौर आया और मुगलिया सल्तनत जब कमजोर होने लगी, तो उस मौके पर ये अंग्रेज हिंदुस्तान आया। और आकर जब उसने देखा तो उसकी नीयत बदल गई। चुनांचे वो बंगाल में, मगरिबी बंगाल में, उस रास्ते से सबसे पहले हमारे उस वक्त बंगाल का सबसे कैपिटल शहर, बड़ा शहर, बड़ा कारोबारी शहर कलकत्ता माना जाता था। वहां पे वो अंग्रेज आया और आकर के उसने वहां के लोगों से खूब मिलनसारी के साथ और बहुत आजिज बनकर लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करके और इस तरीके से रहने लगा। और बिल आखिर उसने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी बनाई, कारोबार के एतबार से ताजिर का भेष बनाया, बिजनेस का लोगों को एक रोल दिखाया उसने, और यूं बताया कि बस हमारा मकसद कारोबार का करना है, इससे हमें भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। इस एतबार से उस दौर में नवाब वर्दी अली खान ने उन्हें कंपनी बनाने के लिए जगह दी और वहीं से अंग्रेजों की नीयत बदली और उन्होंने धीरे धीरे इस मुल्क के थोड़े थोड़े हिस्से पे कब्जा करना शुरू किया। तिजारत के लाइन से, कारोबार के लाइन से वो जहाजों में हथियार भी भरकर लाते थे और अपनी उन्होंने फौज धीरे धीरे बनाना शुरू की और ऐसी फौज बनाई कि बाद में उन्होंने ही बंगाल के हाकिम नवाब वर्दी अली खान को आंखें दिखाना शुरू किया। और फिर नौबत ऐसी आई कि उनकी फौज से अंग्रेज लड़ने और टकराने लगे। बिल आखिर बात ऐसी समझ में आई कि नवाब वर्दी अली खान की ये बात समझ में आई, लेकिन जब तक उसके समझ में आई अंग्रेजों ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला वो हाकिम बना और बनते ही उसने मुकाबला किया और अंग्रेजों को यूं समझ लीजिए कि खत्म भी किया और भगाने का पूरा इरादा किया। लेकिन उसी दौरान नवाब सिराजुद्दौला का ही एक अफसर, उन्हीं की कैबिनेट में रहने वाला एक इंसान, मीर जाफर नाम का शख्स, उसने गद्दारी की और बहुत सारी जमीन अपने नाम अंग्रेजों ने वादा किया कि हम कर देंगे, इसलिए उसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की। बिल आखिर नतीजे में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से कलकत्ता का एक बहुत बड़ा मगरबी बंगाल का हिस्सा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर मुस्तकिल उनकी मेहनत होती रही। फिर वो धीरे धीरे वहां से रेंगते रेंगते हमारे करीब मैसूर इलाके में आ गए, दक्कन के इलाके में, और वहां उस वक्त हुकूमत थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैदर अली की। हैदर अली के इलाके में आए, हैदर अली ने मुकाबला किया, कई मर्तबा जीत भी हुई लेकिन आखिर शिकस्त हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से 4 बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। 3 जंगों में बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन उस वक्त तक अंग्रेज, उनके अंदर एक अय्यारी और मक्कारी ये थी और एक चालाकी उनके पास ये थी कि वो जिससे लड़ाई करते
اس کی حمایت کسی کو کرنے نہیں دیتے، دوسروں کو پھوڑ دیتے، جیسے آج کے دور میں اسرائیل کرتا ہے۔ چنانچہ اس وقت میں بہت سارے جو الگ الگ ریاستوں کے بادشاہ تھے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جب انگریزوں کی اس عیاری کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے تمام راجاؤں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس کو اپنے ملک سے بھگانا ضروری ہے، لیکن انگریزوں نے الگ الگ سازگار الگ سے کر رکھا تھا، اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حیدرآباد کا نظام، اس نے بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹیپو سلطان تھوڑا کمزور پڑنے لگے، لیکن بڑی بے باکی اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور یہاں تک کہ 3 بڑی جنگوں میں انگریز کو بہت بڑی شکست دی، اتنی شکست دی، اتنے انگریزوں کو مارا اور اتنا اپنا خوف اور ڈر دکھایا کہ کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ انگریز رات کو ان کے دلوں میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ رات میں جب انگریز اپنے بچوں کو سلاتے اور بچہ نہیں سوتا تو اس وقت کہتے تھے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا، یعنی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا اتنا ڈر تھا انگریزوں کے دلوں میں۔ لیکن ہوا یہاں بھی وہی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے فوجیوں میں ایک باغی تھا جس کا نام تھا میر صادق، اس نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سارے رازوں کو انگریزوں کو بتا دیا کہ آپ کی فوجیں کہاں ہیں، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں، آپ کہاں سے لڑتے ہیں، آپ کے کمان کتنے ہیں، آپ کے دروازے کتنے ہیں، آپ رہتے کہاں ہیں۔ اب یہ جب سارا نظام دشمن کے ہاتھوں لگ جائے تو اب اس کے لیے تدبیریں کرنا آسان ہوتا ہے۔ فوجوں میں بغاوت پھیل گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ انگریز کہاں سے گھس آئے۔ حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے اس ملک کے تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے کمال درجے کی صلاحیت دی تھی، اتنا ذہن دیا تھا کہ ہمارے اس ملک کے پہلے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ایسی توپ بنائی کہ جس سے وہ انگریزوں پر وار کرتے تھے، اور وہ آج کے زمانے میں جسے ہم میزائل کہتے ہیں اسی کی ایک وہ شکل تھی جو سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے بنائی۔ انگریز جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کیا اور یہاں تک کی غداری کی وجہ سے آپ کو شکست ہو گئی اور وہ آپ کے قریب آ گیا، اور یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے جواں مردی کے ساتھ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد انگریز آپ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اب اس ملک میں ہم سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو توپ بنائی تھی، انگریز اسے اپنے ملک لے گیا اور جا کر ریسرچ کیا، اور ان تمام ریسرچوں کے باوجود اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے چلایا کیسے جائے۔ تو اس کے بعد اس نے یہاں سے دکن سے کتاب منگوائی اور اس کتاب کے ذریعے سے پھر اس نے اس کو تیار کیا اور سمجھا، اور اس کے سمجھ میں آیا کہ اس کو کس طرح چلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اتنا کمال درجے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ بالآخر اس حصے پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تیسرے نمبر پر انگریز یہاں سے دلی پہنچا اور دلی کے قلعے پر حملہ کر کے آخری بادشاہ جو اس وقت مغل تھا، جس کو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، اس کو بھی پکڑ کر کے قید کر دیا، اور قید ہی نہیں کیا بلکہ وہاں سے ان کو قید کر کے مرکز نظام الدین کے سامنے آج بھی ہمایوں کا مقبرہ ہے،
उस मकबरे में उन्हें कैद किया गया और दूसरे दिन उनके 4 बेटे थे। उन चारों बेटों को शहीद करके उनकी गर्दनों को, उनके सरों को एक थाली में रखकर और ऊपर से एक रेशमी रुमाल ढककर बहादुर शाह जफर के सामने ये कहकर पेश किया गया कि ये लो तुम्हारा नाश्ता है। और जब बहादुर शाह जफर ने रेशमी रुमाल का वो कपड़ा हटाया तो देखा कि ये तो मेरे फर्जंदों के सर हैं। आखिर सब्र करके बड़ी हिम्मत से बहादुर शाह जफर ने ये बात कही कि तैमूर की औलाद इसी तरह सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया करती है। तो अजीज दोस्तों, इस तरीके से अंग्रेज जगह जगह, इलाके इलाके में कब्जा करते हुए कोई गद्दारी की, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अब एक लंबी तारीख है कि किस किस के हिस्से को बयान किया जाए इस मुख्तसर से वक्त में। बहरहाल ये आप समझ लें कि अंग्रेज आया और 1601 में आया और आकर के उसने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया और यहाँ के तमाम बाशिंदों को गुलाम बना लिया। कोई हैसियत हमारी नहीं रखी, हमें चाबुक से मारता, खेतों में काम लेता और इस तरीके से यहाँ इस मुल्क के रहने वाले को किसी भी मजहब से हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको उसने ऐसा गुलाम बनाया कि उनकी जिंदगी जानवर से भी बदतर कर। बिल आखिर इस बात को जब महसूस किया गया कि अब इस मुल्क में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो फिर यहां मर्द मुजाहिद खड़े हुए और उसमें सबसे पहले 1803 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बड़े फर्जंद अर्जुमंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब अंग्रेज की इन चालों को समझ लिया कि वो इनका मकसद बिजनेस नहीं है, वो तो इस मुल्क पे हुकूमत करना चाहते और इनका कब्जा है, तो अब ये शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद से ये फतवा सादिर किया और कहा कि ए लोगों, ये अब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है, इनसे जिहाद करना अब फर्ज ऐन है। जिहाद का फतवा जारी किया। उस वक्त जब ये फतवा 1803 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया तो ये खबर पूरे मुल्क में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 2 शागिर्द तैयार किए, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल सैयद रहमतुल्लाह अलैह, ये 2 उनके शागिर्दों ने पूरे मुल्क का दौरा किया और लोगों को बताया कि लोगों, ये अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेजों का कब्जा है और ये अब हम गुलाम हो चुके, हर चीजों पर ये कब्जा कर चुके हैं, यहां तक कि अब हम अपनी चीजों के मालिक नहीं रहे, इसलिए इनसे जिहाद करना फर्ज ऐन है। इस तरीके से इन 2 नौजवानों ने पूरे मुल्क का दौरा करके तमाम लोगों ने जिहाद की रूह फूंक दी और फिर ऐसा पूरे मुल्क में बिगड़ बजा और ऐसा अलार्म बजा कि पूरे मुल्क में सारे लोग समझ गए अंग्रेज की नापाक साजिशों को और सारे लोगों के दिलों में अंग्रेज की नफरत बैठ गई। सब निकल आए और उसमें सबसे आगे जो पहले थे, वो सबसे अव्वल सफ में जो थे वो मुसलमान थे। इसी वो इसलिए मुझे बताना आपको जरूरी है कि आज आजादी तो हम मनाते हैं और मनाना चाहिए, खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आज हम खुद अपनी तारीख को नहीं जानते, खुद हमें नहीं पता कि हमारे आबा व अजदाद ने, असलाफ ने, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इस मुल्क को अंग्रेजों से, उनके चंगुल से, उनकी गुलामी से छुड़ाने के लिए, आजाद कराने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है, ये आज खुद हमें और आपको पता। ये बड़े दुख की बात है। हालांकि शायर ने इसी बात को समझाया, इस मुल्क के तमाम लोगों को समझाया कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा,
हाथ हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने, बाग सारा जाने है। मतलब क्या कि जो एक बागीचा है, जो एक गार्डन है, उसके एक एक पत्ते को पता है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों से, गुलामी से निजात दिलाने के लिए किसकी कुर्बानियां हैं। लेकिन वो जो इस बागीचे का गुल है, जो फूल है, और जिसके आबा अजदाद ने इस मुल्क को आजादी दिलाई, उसे नहीं पता है। चुनांचे आज इस मुल्क में मुसलमान एक मायूसी की जिंदगी गुजार रहा है। एक मुसलमान ये सोच कर जिंदगी गुजार रहा है कि ये हम किराएदार हैं, हम इस मुल्क में बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने इतिहास ही नहीं जाना, हमने कुछ तारीखों को पढ़ा ही नहीं। और याद रखो, सबसे पहले किसी कौम पे जब जवाल आता है तो सबसे पहले उसकी तारीख को मिटाया जाता है, उसकी तारीख को मिटाया जाता है, ताकि कौम तारीख को जब अपने नहीं जानेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस मुल्क को आजाद कराने में कितना हमने खून बहाया है। तो इस मुल्क की खातिर वो अपने आप को हमेशा किराएदार समझेंगे। लेकिन अजीज दोस्तों, हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं है, और सफे अव्वल के हिस्सेदार हैं। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम तारीख पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कम से कम एक सदी, 1-2 साल नहीं, 100 साल ऐसा इस मुल्क पे गुजरा है कि अंग्रेजों से इस मुल्क को आजादी दिलाने में, इस जिहाद में मुसलमान के अलावा कोई मैदान में नहीं था, कोई नहीं था। इतिहास है, लेकिन आप पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा कि हमारे आबा अजदाद ने 1-2 साल की दास्तान नहीं है, 2-4-10 दिन की बात नहीं है, एक सदी ऐसी गुजरी है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आगे रहे। और मुसलमानों में भी बता दूं कि उसकी पहली सब उलमा की रही है। उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, गर्दनें उनकी लटकाई गई हैं, उन्हें आग में डालकर जलाया गया। आपको पता नहीं है, अंग्रेज मुअर्रिख है, राइटर अंग्रेज है, तारीखदां अंग्रेज है, उसकी बात गलत नहीं होगी। थॉमसन अपनी किताब में लिखता है कि मेरा खेमा लगा हुआ था और खेमे के पीछे से मेरी खिड़की से कुछ जलने की बू आई। मैं खेमे से बाहर गया और जाकर मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा अंग्रेजी फौज चारों तरफ से खड़ी है। और वहां पर मैंने गिना कि मुसलमानों के 40 मुल्लाओं को लाया गया था। ये मुल्ला से मुराद उलमा थे, उस जमाने में आलिमों को मुल्ला कहा जाता था। 40 मुल्लाओं को लाया गया और उन उलमा से कहा जा रहा था कि तुम कह दो कि हम अंग्रेज से नहीं लड़ेंगे, अंग्रेज की फौज में नहीं मतलब शामिल होंगे, अंग्रेज के साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अंग्रेज थॉमसन लिखता है कि मैं खुदा को गवाह बनाता हूं कि उन 40 उलमा में से किसी एक आलिम ने भी ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दिया जाए और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ूंगा। कहा कि हम पहले भी लड़ते रहे, अब भी लड़ेंगे, और जब तक तुम इस देश को छोड़ नहीं दोगे उस वक्त तक तुमसे मुकाबला करते रहेंगे। अंग्रेज थॉमसन लिखता है, मेरी नजरों के सामने उन 40 को जलते हुए अंगारों में डाल दिया गया। थोड़ी ही देर में उनकी खालें उनकी हड्डियों से अलग हो गई, ये मैं देखता रहा। इस तरीके से 40 उलमा को एक एक टाइम में लाकर जलाया। ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है। आज हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और मुसलमान भी अफसोस इतनी ऐसा से कमतरी का शिकार है। और हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन मांगते हैं यार? तो ये वो लोग हैं, ये उनकी औलादें हैं जो अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर जेल से रहाई मांग रहे, जो अंग्रेजों से साजबाज करके थोड़ी सी रिश्वत पर राजी होकर इस मुल्क के वासियों की मुखबिरी किया करते, जो अंग्रेजों के दल्लाल थे, वो लोग आज देशभक्ति का सबूत मुसलमानों से मांगते हैं। आज अगर कोई मौलवी या कोई आम मुसलमान दाढ़ी वाला
चलने लगे तो शक की नजर से उसको देखा जाता है, देशद्रोही उसे कहा जाता है। ये क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा समझा जाने लगा? इसलिए कि मुसलमानों, तुमने अपनी तारीख ही भुला दिया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है और बराबर के अव्वल दर्जे के लड़ने वालों में है। अंग्रेजों ने इस मुल्क को मुसलमानों से छीना था और इस मुल्क को आजादी मुसलमानों ने दिलाई है और एक सदी कुर्बान किया है। आबा व अजदाद, नस्ल दर नस्ल खत्म हो गई। हमें आज पता ही नहीं है कि कितनी नस्लें हमारी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में अपना खून देकर गुल मिल गई है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए इस मिट्टी को जब छूओगे तो यहां से भी हमारे पूर्वजों की खून की खुशबू मिलेगी। तो अजीज दोस्तों, ये मुल्क यही आजाद नहीं हुआ। आज सूरत हाल ये है कि लोग कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम देशभक्ति हो कि नहीं, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये पढ़ के सुनाओ तब तुम देशभक्त माने जाओगे। कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमानों, सिर्फ इतिहास पढ़ लो, अपनी तारीख पढ़ लो, तारीख पढ़ लो और देखो। ये बात याद रखना, ये नौबत इसीलिए आई कि रब हमारा हमसे रूठ गया, हमने रब से लो लगाना छोड़ दिया, अल्लाह से ताल्लुक हमारा कमजोर हो गया, रब से मजबूत ताल्लुक न रहा। इस बुनियाद पर आज दुनिया में और हमारे मुल्क में हमारी हालत बनी है। बिलाखिर आपको बताऊं कि ये सूरत हाल बनी कि पूरी हमारे मुल्क में इस फतवे ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। खानकाहों में बैठने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, वो भी मैदान में आ गए। शेख बुखारी पढ़ाने वाले, जो शेखुल हदीस से बड़े बड़े, वो भी मैदान कारजार में आ गए। मुकाबला किया उलमा ने अंग्रेजों से और 1-2 साल नहीं, 1 सदी कने कन्हा मुसलमान अंग्रेजों से लड़ता। और उसकी मिसाल आपको बता दो कि ये तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और नवाब सिराजुद्दौला, ये 1756 से लेके 1857 के पहले की बात है। लेकिन 1803 में जब ये फतवा आया तो सबसे पहले 1831 के अंदर सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों ने चंद उलमा की फौज लेकर बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों से डट कर मुकाबला किया। आखिर शहादत उनके हिस्से में आई। लेकिन ये वो लड़ाई है कि जो 1803 के अंदर लड़ी। आज इतिहास सिलेबस बदला जा रहा है ताकि पता न चल पाए कि ये कुर्बानियां कौन सी हैं। बच्चों के जहनों से खुरच कर मुसलमानों का इतिहास निकाला जा रहा है। आज हमें स्कूलों में देख लो, निशान ही नहीं है। आज देख लो, लाल किला से आज एक आध किसी मुसलमान का नाम ले लिया जाता है कि वो भी फ्रीडम फाइटर है, लेकिन उसमें एक का नाम लिया जाएगा, बाकी सबको भूल जाएगा। आज ये सूरत हाल है। क्यों? इतिहास ही नहीं है। पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और ये इस तरीके से नामों को बदल बदल कर सोचते हैं कि इस कौम की तारीख को मिटा दिया। चुनांचे आप देखो, कभी ये शहरों का नाम बदलते हैं, कभी इसका नाम बदल दिया, कभी उसका नाम बदल दिया। और अब सूरत हाल ये है कि वो ताजमहल जिसकी कमाई ये अपने खजाने में जमा करते हैं, जो दुनिया में 7वां अजूबा है, उसको भी ये इनकार करते हैं कि किसने बनाया, मुसलमान ने नहीं बनाया। लाल किला इनकार करते हैं। ये वो है कि जो मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनका कुर्बानी में इस देश के आजादी दिलाने में पसीना भी नहीं गिरा। ये वो लोग कहते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, कम वक्त में आपसे कितनी बात की जा सकती है। ये सिर्फ जिलेबी खाकर, तिरंगा फैलाकर, और आज जिस तिरंगे को हम लहराते हैं और जिस तिरंगे को लहराकर यौम जश्न मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, इन देशभक्तों को आपको खुद बताना चाहिए
कि ये तिरंगा जिसे तुम लहराते हो, इस तिरंगे को डिजाइन करने वाला भी मुसलमान है। सूरह तैयब है, उन्होंने बनाया है इस तिरंगे को जिसको आज हम लहराते हैं। और मुसलमानों की कुर्बानियां इस देश के लिए, अजीज दोस्तों, कोई एक तो नहीं है कि बयान कर दी जाए, ला बेमिसाल और लामुतनाही कुर्बानियां हैं। किस किस कुर्बानी को आपके सामने रखा जाए। अलगर्ज मुख्तसर किस्सा यह है कि मुसलमानों का 1756 से लेके 1857 तक मुसलमान अंग्रेजों से लड़ने में तने तनहा था। 101 साल की एक ऐसी सदी है कि जिसको लड़ने में कोई इस मुल्क में नहीं था। बिलाखिर आपको बताऊं, 1803 में फतवा आया और फिर 1831 में बालाकोट, और फिर उसके बाद उलमा आगे आए और शामली का मैदान मेरठ से करीब में है, उस मैदान में हमारे आबा व अजदाद बुजुर्गों ने, पुरखों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें आपको बताऊं बानी दारूम मौलाना कासिम नानूदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद के पहले शागिर्द मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जो लड़ाई में पेश थे। और फिर एक 1857 में इनकलाब शुरू हुआ, अंग्रेजों को थोड़ी शिकस्त हुई, तो अंग्रेजों ने गौर करना शुरू किया कि ये शिकस्त हमें क्यों हो रही है, हमारे पास हथियार है, मजबूत वसाइल है, लेकिन हम लड़ क्यों नहीं पा रहे। तो जब गौर किया तो पता चला कि कमान उलमा के हाथ में, उलमा मैदान में आ गए। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन उलमा को, इन मदरसों को और इनके पढ़ने वाली किताबों को खत्म करना चाहिए। चुनांचे फिर वो अंग्रेज एक मिशन बनाकर, आपको बताऊं, जब अंग्रेज आया उस वक्त दिल्ली में सिर्फ 1000 दीनी मदरसे थे, पूरे मदरसों पर बुलडोजर चला दिया। और आपको बताऊं कि एक टाइम में अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ कर उलमा को इकट्ठा जमा किया, और अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, एडवर्ड, उसने ये अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि अंग्रेज सबको जमा करके दिल्ली के चांदनी चौक में लाए, और फिर उसको लेकर के वहां से लेके लाहौर, जो पाकिस्तान रोड जाता है, वहां तक उस रोड के किनारे जितने दरख्त थे, हर दरख्तों पर उलमा को लटकाया गया, फांसी उन्हें दी गई। और यूं लिखा कि 54,000 उलमा को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे में लटकाया। ये उलमा का इतिहास है, ये यूं कुर्बानियां नहीं हुई है, ये देश यूं ही आजाद नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत खून बहा। हम और आप सोचते हैं ये ऐसे। फिर 1857 में, जिसको अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया, गदर नहीं थी, ये आम बगावत थी। अब लोग इतिहास 1857 से बताते हैं, ये मैंने आपको 1857 से पहले 1756 से लेके ये 101 साल का इतिहास से बताया। इस मैदान में कोई बताए कि मुसलमानों के अलावा अंग्रेजों से किसी भी जगह, किसी भी मैदान में लड़ने के लिए कोई हो तो बताए। और आपको इतिहास बताऊं, जब ये फतवा आया और उसके बाद अलग अलग तहरीकें शुरू हुई, तो एक तहरीक बनाई देवबंद के पहले शागिर्द मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल की एक तहरीक चलाई अंग्रेजों के खिलाफ। वो रेशमी रुमाल की तहरीक क्या थी? वो एक खत था, एक पैगाम था जो मौलाना रुमाल पे लिखा करते थे, और वो देखने में तो रुमाल नजर आता, लेकिन उसमें खुफिया पैगाम होता था। और उन्होंने अगल बगल के तमाम मुल्कों से मदद मांगी थी कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आप सब हमारा साथ दें, और एक टाइम आएगा कि हम सब मिलकर इन पर हमला करेंगे। बिलाखिर ये उनकी तहरीक रेशमी रुमाल नाकाम हो गई, उनके अंग्रेज के हाथ लग गई, जिसकी वजह से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और फिर मुकदमे में इन्हें सजा सुनाई गई, माल्टा की जेल। अंग्रेज अपने यहां लेकर गए उनको, और वहां 3 साल तक मौलाना महमूद हसन कैद व बंद के अंदर रहे।
वहां उन पर जुल्म देता रहा। अंग्रेज रोज कहता तुम फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कहते ये नहीं हो सकेगा। बिलाखिर उनके साथ 21 शागिर्द भी थे, जिसमें कुछ खास शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उनके साथ जेल में थे। अंग्रेज रोजाना तहखाने में ले जाता और फिर लाकर कहता कि आज छोड़ दो ये कहना और फतवा दे दो, लेकिन शेखुल हिंद हमेशा नामे सर हिलाते। बिलाखिर इंतकाल जब हुआ और जब उनको नहलाया जाने लगा तो बताता हूं आपको कि नहलाने वाले को बड़ा हैरानी हुई। आप बिल्कुल पतले दुबले गोरे चट्टे बदन के थे, लेकिन जब नहलाने लगा तो पीठ पे देखा कि एक हिस्सा इतना था कि गोश्त नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ हड्डी का एक बदन था, एक ढांचा था। नहलाने वाले ने पूछा कि ये क्या राज है? शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने बताया कि ये मेरे और मेरे उस्ताद के दरमियान एक राज था, लेकिन आज मैं बताता हूं कि ये अंग्रेज रोजाना उनको तहखाने में ले जाता और वहां सलाखों को गर्म करता और गर्म करके इनकी पीठ को दागता और कहता कि फतवा हमारे खिलाफ वापस ले लो। आप चीखते चिल्लाते, लेकिन फतवा कभी वापस नहीं लिया और ये इसी वजह से उनकी कमर की आदत। ये थे शेखुल हिंद मौलाना महमूद, जिन्होंने तहरीक रेशमी रोमान चलाई। और आपको बताऊं, आज लोग नाम लेते हैं बहुत से लोगों का, लेकिन इन कुर्बानी देने वालों का इतिहास अगर मालूम भी है तो नाम नहीं लिया जाता। आपको बताऊं कि इनको जब माल्टा से रहाई मिली 3 साल के बाद और जब इनको बंबई के बंदरगाह पे लाया गया और फिर उनके इस्तेकबाल के लिए हमारे मुल्क से बहुत लोग गए, उन इस्तेकबाल करने वालों ने मोहनदास करमचंद, जानते हो, जिन्हें आज हम गांधी कहते हैं, उस वक्त उनका नाम सिर्फ मोहनदास करमचंद था, वो भी इस्तेकबाल में थे। और उस वक्त तक जब उनको माल्टा की जेल से वापस लाया गया, उस वक्त तक ये मोहनदास करमचंद जी, गांधी जी, साउथ अफ्रीका में बैरिस्ट्री का काम करते थे, वकील थे। ये शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इस तहरीक में शामिल किया और फिर जमीयत उलमा के खर्चे से पूरे मुल्क का दौरा कराया गया गांधी जी का, और उन गांधी जी को लक़ब जो दिया वो महात्मा का मौलाना ने दिया। महात्मा जो कहा जाता है, आज हम कहते हैं ना महात्मा गांधी, ये लक़ब मौलाना महमूद हसन देवबंदी का दिया हुआ है और कहा कि लोगों को बताओ कि ये गांधी ये हमारे साथ है इस तहरीक में, और अब इस मुल्क को अंग्रेजों से भगाने के लिए हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ेंगे। ये 1857 का इनकलाब है। उसके बाद की ये स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये लड़ते रहे, अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों पे हमला होता रहा, हर एक अंग्रेजों को तकलीफ पहुंचाते रहे। आखिर अंग्रेज परेशान हो गया तो फिर उसने ये कहा कि अब हम इस मुल्क को छोड़ देंगे। रांझे वो दिन आया 1947 में, और वो आजादी का दिन इस मुल्क वालों ने मनाया जो आज 15 अगस्त है, जो जिलेबी खाकर हम सिर्फ सो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास है। इन कुर्बानियों को हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इस मुल्क में हमें जो है हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां। आप किस किस दास्तान को आपके सामने रखा जाए? उलमाए किराम को तोप के सामने सूअर की खाल में दम किया जाता, एक तरह की सजाएं नहीं दी गई। सूअर की खाल में दम करके तोप के सामने बांधा जाता और तोप उड़ा दिया जाता, कागज की तरह परख के उड़ जाते। ये ऐसी कुर्बानियां दी, ये किसी एक दो मुसलमान की कुर्बानी नहीं है, आम मुसलमानों की कुर्बानियां बताओ। आपको बताऊं, इतिहास ये भी है कि ये मालाबार का इलाका, जिस इलाके से पहले इस्लाम आया हमारे मुल्क में, इस मालाबार के इलाके में अंग्रेज जब पहुंचा और जब उसने देखा तो उसने एक दिन में जमा करके 43,349 लोगों को
एक ही रस्सी में दो लोगों को जमा करके फांसी के फंदे पे लटकाया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क के किस कोने का मैं नाम लूं, किस हिस्से को बताऊं, किस खित्ते को बताऊं, किस नदी नाले को बताऊं कि जहां मुसलमानों के खून की नालियां न बन करके उस जमीन में न बनी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन अब जिनको जो कहना है, हमें देश का गद्दार कहा जाता है, हमें देशभक्त के लिए कागज दिखाना पड़ता है, हमें अपने घरों पे तिरंगा लहराना पड़ता है कि भाई हम भी इस मुल्क को चाहने वाले, हमारे सीनों में तिरंगा है, हमारे सीनों में तिरंगा है। और तुम्हें क्या पता इस तिरंगे की कदर? आपको बता दूं कि ये उनकी औलादें हैं जो आज बहुत जमाने तक कभी इनकी ऑफिसों पे तिरंगा नहीं लहराया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आज वही देशभक्ति का सबूत था, क्योंकि देशभक्ति का सबूत इस तरह होता है। और कुर्बानी उस वक्त भी दी है, और मुझे ऐसा लगता है कुर्बानी फिर से देने का वक्त है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बिल आखिर मुख्तसर वक्त में कहना आपसे कि आज सिलेबस खत्म किया जा रहा है, मोहल्लों के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों का नाम बदला जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, ताकि ये नस्ल तो जानती है कि ये इस्लामपुर है। अभी जुलाई में बदला गया ना नाम। ये नस्ल तो जानती है कि ये इस्लामपुर है, इस नस्ल को तो पता है। लेकिन अगली नस्ल जब आएगी और वो जब बोर्डों पे देखेगी कि ये तो इस्लामपुर नहीं ईशापुर है, तो वो कहेगी कि नहीं ये ईशापुर ही था। तो इस तरीके से रोडों के नाम बदले जा रहे। जहां भी मुसलमान से नफरत इतनी कि अगर उनके नाम से कोई रोड है तो उसको भी बदल दो, उनके नाम से कोई इमारत है तो उसको भी बदल दो। ये आज इस मुल्क में हमारे मौजूदा नफरत का सूरत हाल। इतनी नफरतें रखी गई, लेकिन इन्हें नफरतें करने दो, इन्हें चाले चलने दो। मायूस मत होना। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ लोगों, इस्लाम से मजबूत ताल्लुक पैदा कर लो, अल्लाह से मजबूत लो लगा लो। इतनी जितनी चालें चलेंगे, अल्लाह ताला इनसे बेहतरीन तदबीरें करने वाला है। इनकी चालें, इनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तो इस बुनियाद पर मेरे मोहतरम अजीज साथियों, हमें और आपको चाहिए कि हम अगरचे सिलेबस में ये पन्ने खत्म हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों को इतिहास बताएं, लाकर किताबों को खरीदें, खुद भी मालूम करें, नॉलेज लें और सोचें कि इस मुल्क को आजाद दिलाने में सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मुसलमानों का इतिहास है। और हर सदी में ये इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मुसलमानों की कुर्बानियां इस देश को आजाद कराने में, खून देने में इतनी रही है। आज अभी दोस्तों, हम जो है खुद ही भूल गए, खुद ही हमें नहीं पता है। तो जब किसी कौम पे शौकत पे जवाल आता है तो सबसे पहले उसकी तारीख को मिटाया जाता है। आज हमारी तारीख हम खुद ही भूल जाएंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा। आज हम खुद ही दो चार गैर के लोगों के बीच में बैठ जाएं तो हम खुद अपने आप को गैर सेफ्टी महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सोचते हैं कि हम तो बड़ी बेबसी की जिंदगी। क्यों? इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमें इस मुल्क में क्या कुर्बानियां दी गई। कॉन्फिडेंस नहीं है, इतिहास पता नहीं है, तारीख मालूम नहीं है, इसलिए मजबूर और बेबस होकर जिंदगी गुजारे। लेकिन हम हिस्सेदार के तौर पर जिंदगी गुजारे। बच्चों का जश्न मनाएं तो बच्चों को ये इतिहास बताएं, अलग से उसके ऊपर स्पीच दें, तकरीरें करवाएं, बच्चों को इतिहास बताएं कि क्या कुर्बानियां आ रही है। सिर्फ थोड़े से चंद लोगों की कुर्बानियां गिनाकर इस हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियां दी है उनके साथ ये बड़ी नाइंसाफी होगी। अफसोस तो यह है कि आज हमारे जो स्कूल और कॉलेज है उसमें भी कुछ ये बातें नहीं बताई जाती। उन्हें भी जो सिलेबस आ गया, जो आ गया उतना पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मुसलमानों की एक दास्तान है, एक कुर्बानी है, एक हिस्सा है। हमें उसमें जो है अजीज दोस्तों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और खास तौर पर अपने नौजवानों से कहूंगा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर और चैटिंग पर घंटों पर बात करने वालों,
कम से कम गूगल पे सर्च करो, तुम्हें मेरठ का वो मैदान दिखाई देगा, तुम्हें जो मैदान जंग में जलियांवाला बाग में जो लड़ाई लड़ी गई, हमारे मुसलमानों की जो लाशें बिखरी पड़ी है, तुम गूगल पे सर्च करो, आज जो लाशें तुम्हें नजर आएंगी। कम से कम वो इतिहास को पढ़ो, मोबाइल का इस्तेमाल करो तो कम से कम इन चीजों को तलाश करो कि हमारे आबा व अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, बताना मुख्तसर ये है कि अपना इतिहास, अपना जो है अपनी तारीख, अपनी कुर्बानियां ना भूलें, खुद भी पढ़ें, नॉलेज लें और अपने बच्चों को भी बताएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक